मैम बहुत धीरे आ रहा है आवाज। Is it audible? It is very low, ma'am. Is it okay now? Your voice is not coming clearly, ma'am. Okay now. Yes, ma'am. सब लोगों को आवाज आ रही है? अदिति आकृति Yes, ma'am. कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करो। सोनल, पूजा, अदिति, आकृति, विशाल, everyone turn on your camera. पढ़ने बैठे हो तो पूजा सिन्हा, अमृत जामियार and विशाल turn on your camera. And लास्ट में मैंने सबको कहा था पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सोनल पढ़ाई ही है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, और उसमें मैंने लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बताया था, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब साइलेंट हो आवाज नहीं आ रही है मेरी। मैम ठीक से आवाज नहीं आ रहा है। ठीक से आवाज नहीं आ रहा है, कैसे हो रहा है ऐसा? अब आ रहा है? अभी यस मैम। अब आ रहा है हाँ मैम। तो सुनना चाहोगे तब का आ रहा है, नहीं मुझे आपकी आवाज कैसे है? चलो बताओ मुझे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? डिस्क्रिप्टिव के दो पार्ट्स थे, कौन कौन से पार्ट्स हैं और दोनों में क्या स्पेसिफिकेशन है बता सकते हैं? मैंने भी पढ़ने के लिए भी कहा था, थोड़ा बहुत बताया। एनी मैम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च This graph describes about something and it deals with the questions like how, what, when, where, and what. Also, in descriptive research, it cannot deal with it cannot establish a relationship of cause and effect, whereas in exploratory research establishes a relationship between cause and effect. So this is the difference between descriptive. What? Ma'am?
difference between the explanatory and descriptive research that it established cause and effect relationship, and it doesn't establish cause and effect. So what are the types of descriptive research? Longitudinal and cross-sectional study. Right. Roll number 5. Am I audible to you? Roll number 5. Am I audible to you? Vishal. Roll number 26. Aditi, roll number 1. यस मैम। बता सकते हो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स क्या है? longitudinal study and cross sectional study. What is longitudinal study? It is measured again and again over a period of time. What did you say? What ma'am? What did you say? I can't hear. Aditi, tell me again, what is longitudinal study? It is measured again and again over a period of time. This is also known as time series study. Time series study. Yes ma'am. So do you know anything about cross-sectional study? Anyone who know about cross-sectional study? It is described in depth, and it actually indicates the reaction of the people. The reaction of the people. Yes. It studies the reaction of the people. Ma'am, it can be done in two ways: field study and field survey. Field study and field survey. It is a type of cross-sectional study. And what is the type of longitudinal study? What is the type of longitudinal study? Roll number 27. And true panel and omnibus panel. तो सबसे जो लिखा है सब बता देना क्या क्या बात है। चलो अच्छी बात है। देखा तो है। चलो देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या है। बैक टू आपका आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है। मैम बहुत धीमा आपका आवाज आ रहा है। क्लियर है मैम आवाज, बस धीमा आवाज आ रहा है बहुत। नहीं पता यहाँ के नेटवर्क का क्या इशू है, बस आवाज नहीं आ रही। Now is it okay? Now is it okay? यस मैम, पहले से बेटर है। Okay now. Am I audible now? यस मैम। Is it okay now?
अब जितनी आवाज है उतने में ही काम चलाइए, फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। चलो देखो क्या था। So what is the studying descriptive study or descriptive research? So descriptive research में हम लोगों ने कुछ characteristic पढ़ा था, कुछ natural assumptions कह सकते हो वो था हमारे पास, जो कि मीनिंग क्लियर है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में क्या क्या हम करते हैं और किस तरह से करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन का आंसर मिलता है, सारा कुछ जो आप लोगों ने बताया वही है। थोड़ा सा इसको डिटेल में हमें पढ़ना है और वो ये बताता है जस्ट अब इसमें लोगों को लॉन्गिट्यूडनल स्टडी पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के दो टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के जो कि लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात कर रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की बात जब हम करते हैं तो एक हमारे पास गिवन टाइम पीरियड हो सकता है, उसमें आप चेंज को देखना चाहते हैं। सपोज 2010 टू 2020 में क्या चेंजेस आया है, या फिर मान लो सीजन चेंज कर रहा है फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई रिस्पॉन्स, या फिर मान लो किसी का एग्जाम लेते हो, टेस्ट लेते हो, वो सिचुएशन उसका रिस्पॉन्स क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, वो देखना चाहते हो। और उसके बाद सपोज उसी चीज को आप नेक्स्ट मंथ 2-3-4 महीने बाद देखना चाहते हो, तो उसमें से अगर निकालना चाह रहे हो, कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, या फिर उस स्टडी को, उस डिफरेंसेस को समझने के लिए अगर आप स्टडी करते हैं, देन दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अब इस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को करने के लिए हमारे पास कुछ पैनल होता है जिसके थ्रू आप डिवाइड करते हैं या कुछ डिसीजन ले रहे हैं कि क्या चेंजेस आया है और उसको किस तरह से आप मेजर करेंगे या फिर उससे क्या इंटरप्रेट करने वाले हैं। तो ये जो टर्म था इसके लिए मैंने लास्ट डे में ये एग्जांपल लिया था, आप लोगों को बताया था कि सपोज किसी पर्टिकुलर मंथ का रिस्पॉन्स लिया गया है, फिर दूसरे पर्टिकुलर मंथ का रिस्पॉन्स लिया गया है, इस तरह से दोनों रिस्पॉन्सेस को आप कंपेयर कर रहे हैं मंथ वाइज और उसका डेटा ले रहे हैं, जो कि एक पूरा टेबल हमारे पास अवेलेबल है। फॉर द फर्स्ट मंथ कोई जनवरी फेब ले लो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में फर्स्ट टाइम T1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा टाइम T1 है। ऑब्वियसली बात है यहाँ ब्रांड का जो एक्स वैल्यू सेल है उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, वाई का है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से वैल्यूज हमारे पास मिला है। अब ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हुआ है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन सिर्फ इसी के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। बहुत सारा कुछ होता है फैक्टर्स जिससे के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन या फिर मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो इसको डिसाइड करने के लिए, उन फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए हम लोग पैनल डिसाइड करते हैं। सो पैनल जब डिसाइड किया जाता है, तो पैनल्स क्या होता है ये देखना पड़ेगा हमें, इस पैनल में एक्चुअल में होता क्या है। तो ट्रू पैनल और ओमनिबस पैनल उसके टाइप्स हैं। अब ये ट्रू पैनल में हो क्या रहा है पहले ये चेक करो। पैनल्स क्या है, दीज आर द फैक्टर्स और कैटेगरीज में आप डिवाइड कर रहे हैं जिसके बेसिस पे अल्टीमेटली आप डिसीजन ले रहे हैं। जैसे देखो ट्रू पैनल में क्या है, दिस इन्वॉल्व्स repeat measurement of the same variable. As for example, perception towards frozen trees or ICT. Each member of the panel is examined at a different time to arrive at a conclusion on the above subject. अभी तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपके पास पैनल जो डिसाइड करने के लिए क्या आया है, क्या है, एक ही वेरिएबल। पहले तो ये लाइन को पहले समझ लो क्या है। दिस इन्वॉल्व्स रिपीट मेजरमेंट ऑफ द सेम वेरिएबल। मतलब आपके पास जब ट्रू पैनल की आप बात करते हो तो आप एक ही टर्म को मेजर कर रहे हो और रिपीटेडली मेजर कर रहे हैं। जैसे कोई भी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में मान लो अच्छा आया, कुछ क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस इनहैंस हुआ है या नहीं चेक करना हुआ, तो ऑब्वियसली आपको पास रिकॉर्ड से चेक करना पड़ेगा पहले क्या रिस्पॉन्स था, पहले क्या मार्क्स आया था, उसके बाद अब क्या आया है। तो डिफरेंस से पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस बेटर हुआ है या फिर खराब हुआ है। तो आपने क्या किया, एक ही टर्म, एक ही परफॉर्मेंस का मेजरमेंट, अब वो टेस्ट के बेसिस पे, इंटरव्यू के बेसिस पे, एग्जाम के बेसिस पे, असाइनमेंट के बेसिस पे, किसी भी पर्टिकुलर टर्म के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, उसी टास्क को दोबारा से परफॉर्म कर रहे हैं और उसी वेरिएबल को दोबारा से मेजर कर रहे हैं। तब जो टर्म्स आता है उसको आप ट्रू पैनल बोलते हैं और इस ट्रू पैनल के थ्रू आप डिसाइड करते हैं
जो डिसीजन लिया है, कंक्लूजन लेंगे या फिर जिसका जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है। अगर आप सपोज पास्ट 10 इयर्स का रिकॉर्ड निकालते हो और पास्ट 10 ईयर के रिकॉर्ड में सिर्फ मार्केट सेल, सिर्फ सेल देखना चाहते हो, तो सेल्स का इंक्रीमेंट हुआ है या फिर डिक्रीमेंट हुआ है या फिर किस तरह से वो बिहेव कर रहा है ये जानना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ एक वेरिएबल सेल्स को स्टडी कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 10 years, 5 years, 2 years, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रू पैनल में क्या होता है, एक ही वेरिएबल है जिसको आपको मेजर करना है, दैट मे बी सेल्स, ठीक है। अब उसके बेसिस पे आपको जो भी डिसीजन लेना है वो लेना है। यहाँ पे each member of the panel is examined at a different time। ऑब्वियसली बात है, आपको टास्क परफॉर्मेंस कुछ भी अलग अलग साल में दिया गया है। सपोज हम 10th से लेके अभी तक आपका परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो क्या हुआ, मैंने देखा परफॉर्मेंस ही, लेकिन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे देखा है, और उस ऑब्जर्वेशन के बाद वी आर गोइंग टू अराइव एट अ कंक्लूजन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन आपका एकेडमिक रिजल्ट कैसा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, या फिर जो भी रिजल्ट्स आया है उसके बेसिस पे देख सकते हैं। यहाँ पे सेल्स लो, मार्केटिंग लो, एडवर्टीजमेंट लो, हर साल एडवर्टीजमेंट कराया जा रहा है तो उसका क्या रिस्पॉन्स है वो चीज दिखाया जाएगा आपको, आपके पास डेटा अवेलेबल होगा, उन सारे डेटा के बेसिस पे आप कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो एडवर्टीजमेंट टेक्निक था वो किस साल हो सकता है, किसी साल ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो जाए उससे सेल का, कभी हो सकता है कम हो, तो उसमें बोला जा सकता है कि ये जो तरीका था वो ज्यादा इफेक्टिव है। ये कंक्लूजन और डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, कोई मैथमेटिकल साइंटिफिक टेक्निक नहीं है इसको कंक्लूड करने का, ठीक है। कोई मैथमेटिकल टेक्निक नहीं है, थोड़ा बहुत टर्म हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी, ऑन एन एवरेज ऐसा सेल हुआ, ये सब टर्म्स इस्तेमाल कर लेते हैं, बट उसका कोई मैथमेटिकल टेक्निक नहीं है। दीज आर द थिंग्स यू आर डिस्क्राइबिंग, और वो डिस्क्रिप्शन जो दिया है आपने अपने प्रीवियस डेटा के बेसिस पे दिया है। हो सकता है उसका बिहेवियर बदल जाए, नेक्स्ट ईयर ही बदल जाए, हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही उसका बिहेवियर बदल जाए, लेकिन आपने जो अब तक का रिकॉर्ड देखा है सिर्फ उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं, और आपने जो रिकॉर्ड्स देखा है वो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बट हाँ, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब तुम ट्रू पैनल की बात कर रही हो तो आपके पास हमेशा एक ही वेरिएबल होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो 10th के मार्क्स की ही बात करोगे, 11th के भी मार्क्स की ही बात करोगे, 12th के भी मार्क्स की ही बात करोगे। उस वक्त आप ये नहीं होगा कि अब नेक्स्ट 12th तक का मार्क्स का बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट में अगर देखो ओवरऑल तो कुछ और बात करने लगो, फिर ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स मैटर नहीं करता, कुछ और नया फैक्टर ले आए, ऐसा नहीं होगा। ट्रू पैनल है तो आपका जो इनिशियल बेसिक वेरिएबल था जिसके बारे में स्टडी आप कर रहे हैं वही लास्ट वेरिएबल भी रहे। सिमिलरली ऑमनिबस पैनल में क्या होता है, इसमें देखिएगा यही जो फर्स्ट लाइन है वही आपके लिए की फैक्टर का काम करने वाला है। इसमें क्या होता है, a sample of elements is being selected and maintained but the information collected from the member varies। अब ये जो ऑमनिबस पैनल है यहाँ पे आपके पास जो है वेरिएबल, जो पैनल आप डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पर्संस क्या हो रहा है, बदल रहा है, एक सैंपल की बात कर रहा है। अब जब सैंपल की बात करते हो तो क्या वेरिएबल और सैंपल में, अच्छा एक सेकंड पहले मुझे ये बताओ, वेरिएबल और सैंपल में किसी को डिफरेंस पता है, व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज सैंपल? व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज सैंपल? दोनों अलग अलग टर्म है, कभी कभी कंक्लूजन निकालने के लिए हम लोग दोनों को मर्ज कर देते हैं, लेकिन है नहीं, दोनों अलग अलग टर्म। बताओ One variable talks about a single product and वेरिएबल इज व्हाट? variable result depends upon the single product at a time. ओके, Whereas sample can be any number of product or quantity.
number of products. देखो variable is what we have to study. परफॉर्मेंस अगर स्टडी करना है, सेल्स अगर स्टडी करना है, एडवर्टीजमेंट का जो मेथड है अगर वो स्टडी करना है, कोई पर्टिकुलर थिंग आपको स्टडी करना है और जिस बारे में आप स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली स्टडी वो वेरिएबल है और वो पैनल डिसाइड कर रहा है क्या देखना है आपका अल्टीमेट जो क्या कहा जाए हमसे कहो से कह सकती हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च आपको यहाँ पे क्लियर होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का और आप उसके रिसर्च के बाद किस चीज का आंसर चाहते हैं, व्हाट व्हेन हाउ जो भी था उन सब में से किस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं और कैसे उसको रिसीव करेंगे, ये ट्रू पैनल में होता है। और यहाँ पे आप वेरिएबल जिस फैक्टर को आप स्टडी कर रहे हैं वो फैक्टर वेरिएबल है। दूसरे केस में जब ओमनिबस पैनल की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल्स होंगे लेकिन यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल की बात नहीं की जाएगी, यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म्स हो सकते हैं। अब देखो पॉपुलेशन टर्म जब आता है, एक टर्म आता है पॉपुलेशन और दूसरा टर्म है सैंपल। पॉपुलेशन क्या होता है, सपोज होल क्लास, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी मतलब 10 20 50 जो भी स्टूडेंट हैं, अगर सारे स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो ये होल पॉपुलेशन हो जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। लेकिन ऐसा बहुत बार हो सकता है जब पूरे क्लास के एक एक स्टूडेंट का, ईच एंड एवरी स्टूडेंट का ओपिनियन मैटर नहीं करता, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको पूरे क्लास का आइडिया कुछ 4-5 स्टूडेंट के बेसिस पे भी मिल जाएगा, है या नहीं? बताओ, हर किसी से बात करना पॉसिबल है क्या? सबका ओपिनियन जानना पॉसिबल है? नो मैम। नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा वैल्यूज है, बहुत सारा वेरिएबल्स है। अब इसमें से कुछ 4-5 स्टूडेंट्स की बात हम सुनते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन निकालते हैं, या फिर एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ए क्लास अगर हमें जानना है तो हम किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं करेंगे, कुछ 4-5 स्टूडेंट का जिसका बहुत ज्यादा हाई मार्क्स ना आया हो, जिसका बहुत ज्यादा लो भी ना आया हो, सारे नॉर्मल कंडीशंस को फुलफिल करता हो, वैसे 4-5 स्टूडेंट्स का हम ले लेते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रू पैनल और ओमनिबस पैनल में होता है एक सैंपल ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो स्टडी आपको करना है, जो वेरिएबल्स का स्टडी करना है, उसका एक टर्म सिर्फ एक यूनिट नहीं लेना है, एक पूरा का पूरा सैंपल लेना है जिसमें 4-5 फैक्टर्स हो सकते हैं एंड उसी में से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना है। और जब भी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, अब ऑब्वियस सी बात है जब 4-5 लोगों का सजेशन और ओपिनियन लिया जाएगा तो वो हर इंसान का ओपिनियन, हर इंसान का परफॉर्मेंस आपस में कुछ ना कुछ वेरी करेगा। जब यहाँ लिखा है लास्ट में देखो, a sample of elements is being selected and maintained, but the information collected from the member varies. आप 4-5 का सैंपल ले रहे हो, बट जो भी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन मिलेगा वो मेंबर टू मेंबर वेरी करेगा, क्योंकि कोई कॉपी पेस्ट वाला केस तो है नहीं, आप जो बोलोगे वही हम भी बोलने वाले हैं और वही रिजल्ट आने वाला है, ऐसा नहीं होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर मेंबर का जो भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से मिला है वो सारा इंफॉर्मेशन वेरी करेगा, बट सब ग्रुप ऑफ एज अ जो डिसीजन लिया जाएगा वो पूरे सैंपल के बेसिस पे लिया जाएगा, लेकिन आपस में उन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल दिया है, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द एटीट्यूड ऑफ पैनल मेंबर्स टुवर्ड्स एन एडवर्टाइजमेंट मे बी मेजर्ड, जो हम कर सकते हैं पूरे ग्रुप ऑफ मेंबर के बेसिस पे। और अगर यही चीज दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम देखें तो वो खुद हो सकता है कि मेंबर में क्वेश्चन अबाउट द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। अब वही ग्रुप क्या कर रहा है, एडवर्टीजमेंट की बात भी कर रहा है, वही ग्रुप प्रोडक्ट परफॉर्मेंस की भी बात कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो ट्रू पैनल में एक सिंगल था, वह यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा भी हो सकता है। अब उन सब के बेसिस पे किसी आपको जजमेंट पे पहुंचना है, किसी एक को जजमेंट पे जो भी आप फाइनली जज करने वाले हो, या फिर ये जो भी डिसीजन होता है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च के बेसिस पे होता है। मतलब आप इतना लंबा चौड़ा जो रिसर्च कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों रिसर्च कर रहे हो, किस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए तुम रिसर्च कर रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ इसी क्वेश्चन को पॉइंट में रखकर, सेंटर में रखकर आप सारा का सारा स्टडी कर रहे हैं
चाहे वो पैनल डिसाइड करे, चाहे वो रिसर्च का मेथड अप्लाई करे, या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं, दैट ऑल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, बिकॉज पूरे रिसर्च के दौरान ऐसे ऐसे फैक्ट्स आते हैं जहां आप डेविएट हो सकते हैं, जहां आप सोच सकते हो कि बहुत सारा फैक्टर्स होता है, बहुत सारा नोन फैक्टर है, बहुत सारा अननोन फैक्टर है, और बहुत सारा ऐसा फैक्टर्स है जो तुम लिस्ट अप भी नहीं कर सकते। तो स्टडी के जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, ड्यूरिंग स्टडी ऐसा बहुत पॉइंट आएगा, बहुत सारा फैक्ट्स आपको दिखेगा जो आपको आपके स्टडी से डेविएट कर सकता है, और वो डेविएशन रोकने का काम सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कर सकता है, एक ही चीज है जो कर सकता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च को हर जगह हर पॉइंट पे आप एज अ सेंटर कंसिडर करेंगे, और उस सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द ही आपका रिसर्च घूमना चाहिए। बहुत ज्यादा वास्ट या फिर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं नैरो भी नहीं होना चाहिए। जो फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होता है उसको होना चाहिए, वो आपको इंक्लूड करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि दैट विल हेल्प टू फाइंड द आंसर। अगर वो डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी है जिसको इम्पोर्टेंट नहीं माना जा सकता, जिसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे, और उसमें आपको लिस्ट ऑफ पूरा ले लो। ओमनिबस पैनल में जो आप करते हो बहुत सारे वेरिएबल्स है, इसमें से कुछ को स्टडी करना है, कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बट सारा का सारा इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं, उसके साथ ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च करने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखो एक टर्म, जब पैनल डेटा आप डिसाइड करते हैं और पैनल लेते ही है, पैनल फॉर्म करते ही है, तो इसका क्या एडवांटेज है पहले ये देखिए। ये डिसीजन क्यों लेते हैं, जरूरत क्या है, या फिर ऐसा करना क्या जरूरी है या नहीं, इससे ये पता चल जाएगा कहीं ना कहीं आपको। तो एडवांटेज क्या होता है, we can find out what proportion of those who browsed our brand and those who didn't. This is computed using the brand switching matrix. ऐसा मुझे ये बता सकते हो क्या? ये प्रपोर्शन समझने के लिए जो प्रपोर्शन ऑफ पीपल आपके ब्रांड को खरीद रहे हैं और जो नहीं खरीद रहे हैं, क्या ये जानना हमारे लिए जरूरी है? बताइए। ये जानना जरूरी है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप जो भी डिजिटल मार्केटिंग और वो सब करने वाले हैं वो सब कुछ उसी पे बेस्ड है। अब ये हम कैसे जान सकते हैं? तो ये जानने के लिए आपको ये फैक्टर्स डिसाइड करना पड़ेगा कि जो लोग आपका, पहले तो ये प्रपोर्शन जानो कि कौन से पीपल है जो खरीदते हैं और कौन से नहीं खरीदते, और जो खरीदते हैं वो किन फैक्टर्स की वजह से खरीदते हैं, उनको क्या पॉजिटिव दिखता है, और जो नहीं खरीदते हैं उनको क्या नेगेटिव दिखता है, या फिर वो स्विच, अगर कोई स्विच करता है तो वो स्विच क्यों कर रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है उसका। ये सारा वो फैक्टर्स है जो पैनल डेटा में होना चाहिए, ठीक है, जो पैनल में होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप ऑब्जेक्टिव तक कहीं ना कहीं पहुंचने वाले हैं। नेक्स्ट है to study, the study also helps to identify the target group which needs promotional efforts. ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें ये पता चल जाएगा कि proportion, what proportion of people are going to buy this product, उससे ये पता चल जाएगा आपको किस ग्रुप को टारगेट करना है, और अगर उस ग्रुप का पता चल जाए तो उसके लिए क्या प्रमोशनल एफर्ट्स आपको लगाना है वो पता चल जाए। और ये सब करने के लिए पैनल डेटा की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है पैनल मेंबर्स आर विलिंग पर्संस, हेंस अ लॉट ऑफ डेटा कैन बी कलेक्टेड। दिस इज बिकॉज बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पैनल इज प्योरली वर्क। अब देखो यहाँ पे एक चीज, कभी कभी ये देखियो, कभी रिसर्च में आप शायद नहीं जानते हो, किसी किसी रिसर्च में क्या होता है, कुछ लोग कुछ चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, वो जो पार्टिसिपेशन करते हैं उसी पार्टिसिपेशन के बेसिस पे आप डिसीजन तक कहीं ना कहीं पहुंचते हो। जैसे मान लो, ये तो सबको पता होगा, कोविड का जो वैक्सीन बना था तो क्या वो सबको एक साथ मिला था? नो मैम, बारी बारी।
मिला था। बारी बारी से मिला, तो बारी बारी से मिलने के पहले भी उसके पहले कुछ टेस्टिंग हुआ होगा, कुछ लोगों को पहले दिया गया होगा वैक्सीन, जिसका इम्पैक्ट देखा गया होगा हर पर्सन पे कि क्या होता है, ऐसा कुछ था, सुना था, ये सब तो सबने सुना होगा ऑलमोस्ट। बताओ। जी मैम। था ना? कुछ यस ऐसे मैम। कर रहे थे, कुछ 1-2% को पहले 10% को दिया गया था, फिर 100 पीपल पे वही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, फिर वही 1000 पे किया गया। जब उसका इम्पैक्ट देखा गया क्या है, पॉजिटिव है या फिर अगर नेगेटिव आ रहा है तो व्हाट परसेंटेज, ठीक है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो किस तरह का उसका इफेक्ट है, ये सारा कुछ ऑब्जर्व करने के बाद उसको लाया गया था कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ ये चीज जब आप पैनल डिसाइड करते हैं तो जो फैक्टर्स है, जो वेरिएबल्स, यहाँ पे पर्सन जो है, हर पर्सन जो है वो एज अ सैंपल काम कर रहा है। ऑमनिबस पैनल की बात कर सकते हो यहाँ पे। 100% को जो वैक्सीन शुरुआत में दिया गया था उसका क्या इम्पैक्ट आया, वो स्टडी का एक पार्ट था। जैसे कोई भी ड्रग, ये सिर्फ उस केस में नहीं होता, वैक्सीनेशन के केस में ही नहीं होता, कोई भी ड्रग अगर मार्केट में आया है, जैसे मान लो पैरासीटामोल ही ले लो, सिंपल सा एग्जांपल है, जो पहली बार बना होगा तो हर किसी को तो नहीं दे दिया गया होगा, वो दवा दिया गया होगा। नो मैम, तो ऐसे ही मार्केट में बेचना भी एक्सपेरिमेंट। शुरू नहीं कर दिया होंगे, नहीं किया होगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप ड्रग कुछ भी लाते हो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो या फिर कुछ नेगेटिव, 100% आप श्योर नहीं होते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरह से कौन सा केमिकल क्या रिएक्शन देगा और किस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो आपको पहले से पता नहीं होता। तो यहाँ पे आपको जानना होता है। तो यहाँ पे जब तक कुछ लोग पार्टिसिपेट उसमें नहीं करें, उन पे आप टेस्टिंग नहीं करो, क्या आप उसको मार्केट में ला सकते हैं? नहीं, बिना नहीं ला एक्सपेरिमेंट के सकते, नहीं ला सकते। नहीं ला सकते। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट जो इनिशियल स्टेज पे आया होगा, उसको कुछ ना कुछ अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई करोगे तो क्या रिस्क होगा, क्या है नहीं है, उनको आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो पैनल, जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट वही बताता है, पैनल मेंबर्स जो होते हैं वो बिलिंग पर्सन होते हैं, ठीक है। अब ये मार्केटिंग के केस में नहीं है, मैं ड्रग के केस में बता रही हूँ, तो दोनों भी अलग अलग चीज किस तरह से काम करेगा, समझना इस डिफरेंस को। अब उसमें क्या हुआ, आपको वो दवा दे रहे हो, कोई भी ड्रग दे रहे हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, वो चीज आपको हेल्प कर रहा है डेटा कलेक्ट करने के लिए या फिर डिसीजन या फिर कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। अगर वो पर्सन विलिंगली आपके पास नहीं आता है और आप उसको ड्रग दे के आप उसका टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो सक्सेसफुल होगा या फिर कुछ होगा उसका, उसके किसी डिसीजन तक आप पहुंच सकते हैं। अगर कोई तैयारी नहीं होता शुरुआत में लेने के लिए, वैक्सीनेशन कोई कराता ही नहीं, तो क्या इसका इफेक्ट क्या है नहीं है वो आप जज कर पाते? बताओ, कर सकते थे? नहीं है पॉसिबल। अब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट इनिशियल लेवल पे बना हो, अब ड्रग की बात नहीं करो, कुछ भी और प्रोडक्ट, तो इनिशियल लेवल पे कुछ लोग तो उसको दिया गया होगा ना कि चलो आप ये टेस्ट करके देखो, आप इसको इस्तेमाल करके देखो क्या है कैसा, ये चीज होता है। हम लोगों के पास इस तरह से कभी पहुंचता नहीं है। बहुत शॉप में ऐसा देखते होंगे आप लोग, जो ट्रायल के लिए कुछ कुछ दिया जाता है एज अ फ्री, कोई कुछ खरीद लो कोई प्रोडक्ट और एज अ फ्री दे देता है इनिशियल लेवल पे, वो आप उसका टेस्टिंग करो क्या है कैसा इम्पैक्ट है। अब उसके बाद वो आपको अच्छा लगता है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम उसको आप परचेस करेंगे। तो इस तरह से पैनल डिसाइड करने के लिए इस तरह का काम होता है। अब ये पर्सन भी हो सकते हैं, ड्रग के लिए कुछ पर्टिकुलर पर्सन, मार्केटिंग तरीका, टीचिंग मेथड, ये सब कुछ उसी का एग्जाम्पल है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बताता है, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द पैनल डेटा इज दैट इट इज एनालिटिकल इन नेचर। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कुछ भी एनालिटिकल टर्म से या फिर, अब ये इफेक्टिव है या नहीं कैसे पता चलेगा? जब तक किसी को ड्रग दिया ना जाए, जब तक उसका इम्पैक्ट ऑब्जर्व ना किया जाए, ये पता नहीं चलने वाला है। और इस पर डिस्क्रिप्शन में तुम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो इसका ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं बता सकते हो। ये एनालिटिकल ही हो सकता है, आप उसका इम्पैक्ट ऑब्जर्व करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो चीज आपको पता चलेगा, वो एनालाइज कर रहे हो। जैसे मान लो कोई किसी का, ये भी ले लीजिए, वेट इंक्रीज करने के लिए कोई दवा खाता है, कोई रिलैक्सेशन के लिए कोई इस्तेमाल करता है, कोई योगा ही करता है, अगर
तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या देखता है, उससे कोई बेनिफिट आया या नहीं। वो बेनिफिट क्या आपको ऐसे मिल सकता है, दिख सकता है सामने से, ऑब्जर्व होगा ऐसा नहीं होगा, और सब बहुत कम केस में होगा। तो अब जो भी आप एनालाइज करेंगे इतने लंबे समय तक, जो भी उसका इम्पैक्ट आया है, वो हमेशा एनालिटिकल इन नेचर होता है। तो ये एनालिटिकल इन नेचर हो जाता है, तो इसका ये बेनिफिट होता है कि आप जब डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम केस में हमारे पास क्या होता है, जब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम करते हैं तब बनता है। और ये एनालाइज करना इतना आसान काम नहीं होता है। एनालाइज करके आप डिस्क्रिप्शन दें, ये इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंड की जरूरत है, क्योंकि उसका भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स दिखेगा। चलो नेक्स्ट देखो, पैनल डेटा इज मोर एक्यूरेट cross-sectional data because it is free from the error associated with reporting past behavior। अब यहाँ पे जब पैनल डेटा की बात तुम करते हो, तो तुम क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन ले रहे हो खुद से, इसका क्या इम्पैक्ट है। आप मार्केट में जाके खुद से फील्ड स्टडी कर रहे हैं, पैनल डेटा जब आप लेते हैं तब वो एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके, जैसे आप वेट कुछ ड्रग आया या फिर वेट इंक्रीज करने का कोई ड्रग किसी को दे रहे हैं, तो वो चीज दिया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसको ड्रग दे रहे हो, उसका डोज, फिर उसका इम्पैक्ट रीड कर रहे हो। तो ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है, काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, दिस इज नॉट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बट ए काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट कर रहे हैं, उसके इम्पैक्ट को देख रहे हैं। अब ये किसी ने आपको बताया नहीं है कि ऐसा पास्ट में ये ड्रग का डोज इतना अमाउंट में देने पर इसका इम्पैक्ट ये आया था, ये आपको बताया नहीं जा रहा। ये हिस्टोरिक कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये आपने खुद किया है। अब आप उसका ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं और उसके बेसिस पे कंक्लूजन और जो भी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो चीज है। यहाँ पे आप खुद करते हो वो काम करके, उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कोविड वाला केस है, लो किसी भी ड्रग का, मेडिकल साइंस में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जो पैनल डेटा प्रिपेयर करने का, सैंपल सर्वे, सैंपल के केस में सैंपल एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट ले लेते हैं, उसका इम्पैक्ट देखते हैं लोगों पे, तो उस तरह से इम्पैक्ट देखने के बाद अल्टीमेटली कुछ डिसीजन लेते हैं, इस तरह से रिजल्ट। ये मेडिकल साइंस में ज्यादा होता है। किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑपरेशन मान लो पहले नहीं हुआ है, पहले लेजर ऑपरेशन बहुत ज्यादा नहीं होता था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने कराया, उसका धीरे धीरे इम्पैक्ट देखा गया। फिर बाद में वही चीज, जब उतना जो डर होता था या फिर लोगों के मन में एक होता था कि अगर ऐसा कराएंगे तो इसका इम्पैक्ट पता नहीं क्या होगा, तो धीरे धीरे वो चीज करके देखा गया, तो उससे पता चला उसका इम्पैक्ट ये हो गया। अब ये डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे किसी ने कहा तो ऐसा होगा, ये चीज आप नहीं देख रहे हैं, खुद करके देख रहे हो इन अ ग्रुप। कुछ पर्टिकुलर पैनल डिसाइड कर रहे हो, पैनल यहाँ पे ग्रुप ही मान लो 10-50 लोग जो है जिस पर आपने शुरू में ड्रग दिया था, उसका इम्पैक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। अब पर्सन टू पर्सन इसमें ये भी देखना है, जो ये पॉइंट लिखा था कि ऑमनिबस पैनल में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन जो है वो वैरी करता है, तो उसका इम्पैक्ट हर इंसान पे अलग अलग होगा। कुछ लोग वेट बढ़ाने का दवा खाते हैं तो पता चलता है उसका बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है, कुछ लोगों का बहुत कम होता है, कुछ लोगों का पता चलता है उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये एडवांटेज होता है पैनल डेटा का। पैनल डेटा में हम क्या कर रहे हैं, एक सैंपल, एक सेट ऑफ पीपल या फिर ग्रुप या फिर फैक्टर्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसको उस पर कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, ये मान सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, अ सैंपल मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑब्वियस। ऐसा हो सकता है कि जो आपने सैंपल लिया है स्टडी करने के लिए, वो सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ना हो। रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो इसका मतलब ये हो सकता है, जैसे मान लो क्लास में 50 लोग हैं, मैंने किसी एक के बारे में पूछा, किसी एक से पूछा, चलो 4-5 स्टूडेंट से पूछा, कुछ क्वेश्चन पूछा, और वो सपोज बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो, तो फिर उनका जो ओपिनियन होगा, मुझे ऐसा क्या लगेगा, उसने जो भी क्वेश्चंस का आंसर किया है बहुत अच्छा आंसर है, और तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं हम मान लेंगे या फिर इंटरप्रेट कर लेंगे कि क्लास में सारे बच्चे अच्छे होंगे ऑलमोस्ट।
अब ये जो भी सैंपल 4-5 स्टूडेंट जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि सारे के सारे स्टूडेंट ऐसे ही। अगर रैंडम सिलेक्शन किया जाता है, जैसे कुछ शुरू में फर्स्ट बेंच पे बैठने वाले बच्चे ले लिए, कुछ मिडिल वन, कुछ लास्ट से ले लिए, ऐसा कर सकते हैं। तो हो सकता है कि मैंने रैंडम सिलेक्शन किया, किसी को भी 4-5-10 लोगों को उठा लिया, उससे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब उसका जो आंसर होगा हो सकता है वो ओवरऑल क्लास को रिप्रेजेंट कर पाए। हो सकता है उसमें कुछ पॉजिटिव भी हो, कुछ अच्छे बच्चे भी हो, कुछ अच्छे नहीं भी हो। ओवरऑल मिला जुला के क्या कंक्लूजन आ रहा है वो बताया जा सकता है। और ये जो मैंने कहा कुछ 4-5 स्टूडेंट को मैंने खड़ा किया और सबको अच्छे से आंसर आता है, सबने अच्छा आंसर कर दिया, तो ये इंटरप्रेट कर लेना कि सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब बहुत पढ़ने वाले हैं, ये इंटरप्रिटेशन हमारा गलत होगा। और अगर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव कुछ इस तरह का आ रहा है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पता चल सकता है। कुछ ऐसा केस में ये भी हो सकता है कि लकीली मैंने जितने बच्चों को उठाया सबके सब पता चला कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो अब उससे ये इंटरप्रिटेशन निकालना कि सारे के सारे बच्चे भोलू हैं, ये भी गलत है। सो सैंपल मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव के केस में ऐसा होता है कि ऐसे सैंपल्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं जो कि उस पूरे ग्रुप को, उस पूरे पॉपुलेशन को एक्यूरेटली कहीं ना कहीं डिफाइन नहीं कर पा रहे। 100% तो अच्छा से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ परसेंटेज बता सकता है। तो इस केस में ये जो आप इसके बेसिस पे जो भी डिसीजन लेंगे, जैसे 4-5 क्लास के बच्चे का मैंने अभी बताया एग्जाम्पल, वो जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन गलत होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है पहले डेटा का। आप जो भी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उस सैंपल के बेसिस पे जो भी डिसीजन बता रहे हैं वो सही नहीं होगा, और ऐसा हो सकता है अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ना हो तब। अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है तो आपका जो भी कंक्लूजन है वो सही है, ये एडवांटेजेस में आ जाएगा, देन इट इज अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन अगर नहीं कर पाता है देन दैट इज अ नेगेटिव, और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, the panel members who provide the data may not be interested to continue as panel members। कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लो वही कोविड वाला केस ले लो, वैक्सीन एक डोज दिए, दूसरा डोज देने के लिए बात कर रहे हैं तो वो सामने वाला लेना ही नहीं चाहता है, या फिर आप ड्रग वेट बढ़ाने वाला या फिर कुछ भी ऐसा डिप्रेशन को ट्रीट करने वाला कोई ये है, तो आप अब आगे ड्रग उसको देना चाहते हो। सपोज आप 1 महीने तक देख रहे हैं, आप 6 महीने का टारगेट लेके चले हैं, 6 महीने तक हम ऑब्जर्व करने वाले हैं ड्रग का क्या इम्पैक्ट है, और सामने वाला 1 महीने के बाद कहता है कि मुझे आपने इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना, आप मुझे नहीं करना, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। आप वैक्सीन दे रहे हैं, चलो ठीक है, एक बार डोज लिया, वो कंटिन्यू करना नहीं चाहता, आगे कंटिन्यू करना ही नहीं चाहता, तो अब आपका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो मेंबर तो एक हट गया। अब दोबारा से किसी मेंबर को आप इंक्लूड करोगे, वो बहुत टाइम लगेगा, फिर उसका क्या है सारा चेकअप सारा प्रोसीजर करने के बाद उस तरह से जाओगे, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी कभी पैनल डेटा जिसको आपने एज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर लिया है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आगे इंटरेस्टेड ही ना हो कंटिन्यू में, तो कहीं ना कहीं यही टर्म आता है ड्रॉप आउट, माइग्रेशन, ये सब टर्म्स आ सकता है। अब आप उस मेंबर को किसी और से रिप्लेस करोगे जो पहला डोज ऐसे ले लिया ही नहीं था, वो आपके पास जो दूसरा, अगर सपोज 1 महीने बाद कोई चला जाता है, अब 1 महीने के बाद जब किसी पर्सन को आप लेते हो तो उसका 1 महीने का ट्रीटमेंट तो कम हो गया, क्योंकि 1 महीने तक वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था उस एक्सपेरिमेंट पे, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। Next point है disadvantage, remuneration given to the panel members may not be attractive, therefore people may not like the panel members। देखो कभी ये भी होता है, जो मैंने कहा ना, ये क्या कहा जाता है, वैक्सीन में अब पता है सबको कि अगर हम वैक्सीन लेंगे तो पता नहीं मेरा बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा, हो सकता है मेरी जान भी चली जाए, हो सकता है पैरालाइज्ड भी हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, उसका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी इम्पैक्ट आ सकता है जो कि किसी को पता नहीं है। वो पॉजिटिवली भी रिएक्ट कर सकता है, नेगेटिव वे में भी रिएक्ट कर सकता है। तो अब वो पॉजिटिव वे में रिएक्ट करे या नेगेटिव वे में रिएक्ट करे, कहीं ना कहीं रिस्क होता है। तो उस रिस्क फैक्टर की वजह से लोग पार्टिसिपेट करते नहीं है, और पार्टिसिपेट करने के लिए उसको कुछ रिम्यूनरेशन भी दिया जाता है, कुछ पैसा दिया जाता है जो जिसकी वजह से वो उसमें पार्टिसिपेट करे। अब वो बहुत ज्यादा नहीं हो
तब भी लोग नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये थर्ड पॉइंट उसी को मीन करता है। Sometimes the panel members may show disinterest and non-committed। ये भी होता है, कभी कभी इंटरेस्ट नहीं है या फिर हाँ बोले हैं तो करेंगे, तो फिर जरूरी नहीं है हम आपके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको हमेशा फॉलो करें, ऐसा तो हमेशा हो सकता है। नेक्स्ट है लेंथी पीरियड ऑफ मेंबरशिप इज। अब ये भी है बहुत लंबा चौड़ा टाइम है, बहुत लंबा। अब 1 साल 2 साल के लिए किसी को बोला जाए कि तुम इस पर्टिकुलर फूड हैबिट को फॉलो करो, इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट को हमेशा लो, तो हो सकता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। 1 साल 6 महीने का जाता है कम से कम, और उससे भी ज्यादा हो सकता है। कभी कभी 2 साल 4 साल का भी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च ऐसा होता है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। तो वही लेंथी पीरियड ऑफ मेंबरशिप जो है उसकी वजह से भी वो इग्नोर करने लगते हैं या फिर जो भी है इस तरह से अवॉइड भी करते हैं लोग। तो ये सारे डिसएडवांटेज है। तो ये सारे डिसएडवांटेज अगर ध्यान से समझो तो ये सब रिस्पोंडेंट के बेसिस पे, सब रिस्पोंडेंट जिसको भी आपने लिया है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टडी करना है, मेंबर्स का कहा जाए ग्रुप लेना है, तो ये सारा ग्रुप के बेसिस पे ही है। जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। आपको जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, वैक्सीनेशन देना है, ड्रग देना है किसी को, किसी पर्टिकुलर, अब फीवर के लिए कोई ड्रग दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जिसको फीवर है उसी को लोगे उसका इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए। तो वो सारा क्राइटेरिया भी तो फुलफिल होना चाहिए। आप किसी का सपोज अगर वेट इंक्रीज करने के लिए कोई दे रहे हैं, तो वेट इंक्रीज करने के लिए उस इंसान का पहले से वेट कम होना चाहिए, तभी तो आप उसको वेट इंक्रीज करने वाला ड्रग सप्लीमेंट दोगे, जो भी दोगे। तो वो सारे कंडीशंस को फुलफिल करने वाला भी केस होना चाहिए, तो वो रिप्रेजेंटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ लोग सिर्फ इस वजह से भी पार्टिसिपेट करते हैं कि उनको रिन्यूमरेशन मिलने वाला है। कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत लाख 2 लाख 5 लाख रुपया दिया जाएगा कि सिर्फ आप इसमें पार्टिसिपेट करें। कुछ लोग विलिंगली करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं आप कितना पैसा देने वाले हो, क्या करने वाले हो, किस तरह से उसका इम्पैक्ट होगा, कोई मतलब नहीं है, बस उसको कुछ नहीं दिख रहा है तो वो बस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं आपके पैनल डेटा का। लेकिन ये देख लेना डिसएडवांटेज जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ सैंपल नंबर, जो भी मेंबर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसी पे डिपेंड करता है। मतलब sample is a panel data and all the observation or longitudinal study what you are talking about is dependent on or totally dependent on the sample observation. So sample के basis पे study करना ही longitudinal study में आता है। और पैनल डेटा होता है जो आप एक ही काम, पैनल डेटा में कुछ फैक्टर्स, कुछ मेंबर्स को आप डिसाइड करते हैं और उसी पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे जो डिसीजंस ले रहे हैं वो सारे। ठीक है, समझ आया क्या बोला मैंने इतने देर में? आया कुछ या नहीं? सबके सब कैमरा बंद करके रखे हो, क्या करने लगे सब बताओ? कुछ नहीं बोलना है, ना हाँ ना कुछ, क्या है? समझ आया कुछ या नहीं आया ये बताओ? मतलब नहीं आया है, मतलब सुने नहीं तुम लोग ध्यान से? टेल मी। सोनल सबका Yes, अब ma'am. धीरे धीरे कैमरा शुरू हो गया, वाह Yes, ma'am. बहुत अच्छे स्टूडेंट है, क्या बात है। थैंक यू मैम। कभी कभी इतने नॉन रिएक्टिव क्यों होते हो? रिसर्च माइक एक्टिव ऑन नहीं मोड हो में रहा होता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो भास्कर? माइक ऑन नहीं हो रहा था मैम। माइक, अच्छा अचानक से अभी सबका माइक ऑन होना शुरू हो गया, वाह। रिसर्च एक्टिव मोड में किया जाता है, पैसिव मोड में नहीं हो सकता है, ठीक है, समझिए इस बात। जी मैम। तो इतना कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है ना। तुम लोग को लग रहा था मैम का काम है बोलना, बस बोलने दो, हम अपना काम कर रहे हैं ना। मेरा पीछे वाला क्लास छूटा हुआ है मैम, इसलिए हम कुछ नहीं बोल। अच्छा पीछे वाले क्लास में नहीं थे। पढ़ने के लिए तो मैंने बोला था आजकल, वो तो कर सकते थे,
मैम होली में कौन पढ़ेगा मैम? अभी तक होली नहीं ना था, अब आज से पहले तक तो होली नहीं ना था, तब पढ़ लेना था। होली खत्म होगा तब देखते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। ओके। हैप्पी होली मैम। ओके। हैप्पी होली मैम। मिठाई उठाई रखिएगा मैम। हाँ ठीक है।